Good morning to all the students. Welcome to the physics class. So students, in the last video we discussed about the current density and Ohm's law. Now our next topic is resistance. So students, first of all, let's we discuss what is resistance. So students, basically if we take the example of a road, if there is no traffic on the road, then we can ride our bike at whatever the speed we need. Like we need speed of 100, we need speed of 80, we can ride it. But if there is a lot of traffic, then we cannot ride it, है ना. तो हमें क्या है, उसको स्लो करना पड़ेगा. So basically in the current, this also happens in case of current electricity, that when basically when the current flows through a conductor, there is a traffic which becomes the obstacle in the way of the current. So it reduces the current. So basically this opposition is called the resistance. So as in case of road, traffic is the resistance. So in case of the electric current, there is resistance, and resistance means opposition of the current, कि जो करंट को रोके. तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, we know resistance is equal to, as we discussed in the Ohm's law, R is equal to V upon I, where V is potential and I is current. Now it is also connected with the physical features of the conductor, that any conductor having length L and area A, then what is the resistance of this conductor? So basically resistance is directly proportional to length and inversely proportional to the area. So students, here the formula of R will be equal to rho L upon A, where rho is resistivity. So resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross-sectional area. Now resistivity. So resistivity depends upon nature of material and not on the geometrical dimensions. So it mainly depend on the material. तो ये उसके साइज के ऊपर नहीं डिपेंड करती रेजिस्टिविटी, बट रेजिस्टेंस उसके साइज के ऊपर डिपेंड करती है. Resistivity is also known as specific resistance. So basically the formula of resistivity is this, that is M upon Ne square into tau. So here students, M is the mass and N is the number of electron, E is the charge on electron, and tau is the time interval. So students, here this is all about the resistance. So students, you also have studied resistance in your class 10th. Now we have derived the current formula, that is I is equal to NEA VD. So this we have derived formula in the topic of drift velocity. So students, from here we can calculate the resistance also. So students, here NEA, we know that formula of VD का formula आपको बताया था उस दिन. तो VD का formula क्या होता है? VD means
drift velocity. So Vd is equal to E upon में m into tau. So students, यहाँ पे स्मॉल ई क्या है? स्मॉल ई है यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे ई जो बड़ी वाली ई है, दिस इज कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, m इज मास एंड टाउ इज टाइम इंटरवल. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो अपना है फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके आफ्टर कैलकुलेटिंग वी नो दैट यहाँ पे जो n और e यहाँ पे टू टाइम्स आ रही है, तो n e स्क्वायर हो गया, a आ गया, ठीक है. और वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ क्या फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल टू V अपॉन L एंड L. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसकी वैल्यू भर के V को इधर ले आएंगे, so that we can calculate the V upon I. So now V upon I is R. So R will be equal to mL upon में n e square into tau into A. Now students, our next topic is conductance and conductivity. So students, basically the conductance is the reciprocal of resistance. So students, what was resistance? Resistance was the opposition opposition offered by the conductor. So what will be conductance? Conductance is the property of conductor that it allows electric current to flow through it. अगर किसी के पास कंडक्टेंस ज़्यादा है, देन द करंट उसमें से ईजिली पास हो सकता है. अगर किसी की कंडक्टेंस लो है, देन इट मीन्स कि उसमें से करंट जो फ्लो होगा वो डिफ़िकल्ट होगा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंडक्टिविटी भी है. कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. सो बेसिकली कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल and it doesn't depend upon the dimensions of the material. SI unit of conductance is MHO, that is reciprocal of ohm OHM, and conductivity इसके जो है वो है MHO पर मीटर. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. दैट हाउ द रेजिस्टेंस depend on the temperature. When the temperature increase, the number of collisions increase due to more internal energy and relaxation time decreases. So therefore resistance increase. तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या है, जो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो आपका करंट फ्लो होता है वो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो मोशन है वो तेज हो जाता है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, तो उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है. तो इसके कारण उनका जो है वो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है. सो एज वी नो हियर दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम. तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, देन व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस? सो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. तो स्टूडेंट्स, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस. द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. सो what is temperature coefficient of resistance? This is Ri minus R naught upon में R naught into T. So here R naught is resistance at 0 degree and RT is resistance at 1 degree Celsius, sorry, T degree Celsius, and here R1 resistance at T1 and R2 resistance at T2. तो दोनों फॉर्मूले से
कोई भी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो टू कैलकुलेट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर इफ R2 इज ग्रेटर देन R1 देन हेयर जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा मीन्स जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अगर R2 ज़्यादा हुआ, R2 मीन्स रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2। Our next topic is internal resistance. तो स्टूडेंट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो अपने कहते हैं ना सेल, तो सेल का मीनिंग क्या है? सेल इज़ बेसिकली सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलता है? ईएमएफ। ईएफएम मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि करंट को किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करवाना है तो उसके लिए हमें ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज बेसिकली द एनर्जी। एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है द वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, कि एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जो चार्ज के ऊपर वर्क डन हुआ है, तो वो वर्क डन जो है दैट इज़ द ईएमएफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अगर अपनी बात करें कि इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो आपका सेल है, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस करंट को जो ऑपोजिशन मिलेगी वो होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। और वो कौन ऑफर करता है? वो ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट। सो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन्स में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही जो करंट को, जैसे अपने मान के चले यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास सेल है। ठीक है बच्चों, इसमें ये वन इलेक्ट्रोड है, ये अदर इलेक्ट्रोड है, बाकी सारा क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, अंदर कैसे हो रहा है ये देखो बच्चों, ये मान लो है प्लस टर्मिनल, ये है माइनस टर्मिनल। ठीक है, अब करंट क्या है, ऐसे हमने कोई वायर जोड़ दी और ऐसे जाएगा प्लस से माइनस, और ऐसे होके फिर इस नेगेटिव जो आपका इलेक्ट्रोड है उसमें आ जाएगा, फिर नीचे को जाएगा, फिर इलेक्ट्रोड के थ्रू, किसके थ्रू? इलेक्ट्रोड के थ्रू वो फिर से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आ जाएगा और पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पे जब वो इलेक्ट्रोड के थ्रू फ्लो हो रहा है ना, तब उसको जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्योंकि देखो अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आने के लिए उसको कहाँ से जाना पड़ रहा है? उसको इलेक्ट्रोलाइट से होकर जाना पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। और जितना ये वाला जो इलेक्ट्रोड के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको जितना बढ़ाओगे उतना ही जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब बच्चों, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेसर द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये भी वही पॉइंट है कि जितना ज़्यादा उसकी कनेक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट की, उतना ज़्यादा बढ़िया वो करंट को फ्लो करवाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? यहाँ पे थर्ड पॉइंट में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज़्यादा एरिया उसमें हम डिप करेंगे इलेक्ट्रोड का, उतना कम जो है वो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी इंटरनल रेजिस्टेंस।
फोर्थ पॉइंट जो है इंटरनल डिस्टेंस जो है हाउ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। नाउ स्टूडेंट्स we have to derive this formula. Now students, we know that what is EMF. EMF of a cell is the total work done during the full cycle, ठीक है। तो फुल साइकिल में जितना उसको वर्क करना पड़ेगा दैट इज़ द EMF। तो देखो बच्चों, अगर अपने यहाँ पे देखें फुल साइकिल मीन्स हमने यहाँ से सेल से चलना है और ऐसे जाना है और ऐसे जाके पूरा साइकिल कंप्लीट करना है। तो इस साइकिल में बच्चों फुल साइकिल में अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो होता है, तो करंट को सबसे पहले कहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट को हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे वो वर्क डन करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वर्क डन यहाँ पे हो गया आर रेजिस्टेंस पे, तो वो वर्क डन क्या होता है, वी नो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम ये जो पहला उसने वर्क किया उसको हमने लिख लिया V। उसके बाद फिर वो आगे गया, फिर उसने वर्क किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसका स्मॉल r पे वर्क डन होगा, तो हमने मान लिया स्मॉल v इज दी वर्क डन एट स्मॉल r, ठीक है। अब v का फॉर्मूला हम जानते हैं, v इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे भर दिया I इंटू आर, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, दैट इज I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज सर्किट इक्वेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल डिस्टेंस ऑफ अ सेल इन टर्म्स ऑफ E, V एंड R। तो वही फॉर्मूला आपने दोबारा उठाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने R की वैल्यू निकालनी है, सिंपली वही फॉर्मूला मैंने लिया है। उसके बाद ये देखो मैंने IR को इधर ले आया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अपने यहाँ पे देखें तो IR को मैं इधर ले आया और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है दोनों तरफ डिवाइड करेंगे I कैपिटल R से। तो जब दोनों तरफ कैपिटल R से डिवाइड करेंगे IR से, तो यहाँ पे I से I कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा R अपॉन में कैपिटल R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा E अपॉन में V माइनस 1। तो इस तरीके से ये रिलेशन हमने गेट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, जो सेल्स हैं इनको हम दो तरीके से वी कैन join the cells in two ways. One is in series combination and second is the parallel combination. तो वो हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, हमें उस हिसाब से हम सीरीज़ में जोड़ते हैं या पैरेलल में। तो दो कनेक्शन हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब सीरीज़ में देखते हैं बेटा, सेल्स व्हेन कनेक्टेड। अब देखो सेल्स कब सीरीज़ में होंगे, जब जैसे मान लो फर्स्ट सेल है, अब फर्स्ट सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर जोड़ दें, ठीक है। अब देखो इसका माइनस किससे जुड़ा हुआ है, इसके प्लस से, देन दिस विल बी दी सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स नोट डाउन दीज 3 पॉइंट्स कि इसमें जो EMF है, EMF ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल EMF। तो यहाँ पे जो EMF होगा वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। EMF इंक्रीज हो जाता है और कितना होता है, अगर मान लो इसका 3 है, ठीक है, पहले का 3 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 5 है, तो टोटल EMF कितना होगा 3 + 2 + 5। उसके बाद स्टूडेंट्स करंट जो है, करंट इन ईच सेल इज सेम। सभी सेल्स में जो करंट है वो सेम रहता है।
एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द एंटायर अरेंजमेंट। ठीक है, तो पूरी की पूरी अरेंजमेंट में जो करंट है वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। सो स्टूडेंट्स, हियर टोटल ईएमएफ आपको बताया था मैंने किसके इक्वल होगा, जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसको ई से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद एन आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड फुल रेजिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल रेजिस्टेंस है वो भी लगी हुई है। सो एन आर प्लस आर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज करंट की वैल्यू क्या होती है? वी नो करंट इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था, ये रहा, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, आई विल बी इक्वल टू ईएमएफ कितना है? एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस है एन आर प्लस आर। सो कंक्लूजन क्या है इसका? व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस is negligible in comparison to the external resistance, then cells are connected in series to get maximum current। तो इस तरीके से हम अगर मैक्सिमम करंट लेना चाहते हैं then we connect the cells in the series। next is the cells in parallel। सो स्टूडेंट्स, सेल्स इन पैरेलल, अगर मान लो इसको सभी के प्लस प्लस एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर दें और सभी के माइनस माइनस एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर दें, और दोनों पॉइंट्स को एक ही पोटेंशियल से अब जोड़ दें, देन दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में बच्चे जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज सेम, ये सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं। उसके बाद करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ से I जा रहा है तो इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा और इसमें I3 जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस हम कैसे ढूंढेंगे? रेजिस्टेंस वही फॉर्मूला के पैरेलल में कैसे ढूंढते हैं? पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, दिस विल बी दी टोटल रेजिस्टेंस। तो इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे देन इट विल बी R अपॉन में N। सो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, क्योंकि बार भी डिस्टेंस है तो R अपॉन N प्लस कैपिटल R। टोटल ईएमएफ कितना है, क्योंकि बदलेगा नहीं, ईएमएफ सेम ही रहेगा, सो इट विल बी E। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे? E अपॉन में NR प्लस R। तो इसको अगर अपने यहाँ पे जो N लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, ठीक है, ओनली E आएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव किरचॉफ्स लॉ। तो इसमें दो लॉज हैं बेटा, एक तो फर्स्ट लॉ उसको बोलते हैं जंक्शन रूल या करंट लॉ भी कह सकते हैं, और दूसरा है हमारे पास सेकंड लॉ, दैट इज वोल्टेज लॉ भी कह देते हैं, लूप लॉ भी कह देते हैं। इसमें बच्चे जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मान लो किसी एक पॉइंट के ऊपर कई सारे करंट आ रहे हैं, कई सारे करंट जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो I1 और I1 और I4 जो हैं दे आर कमिंग, एंड I3, बाकी जो हैं I3, I2, I1, I5 ये जो है वे ये जा रहे हैं। तो इसमें बच्चे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर आप जो आपके सम करोगे, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द जंक्शन विल बी 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, आपने ये जो आ रहे हैं दैट इज I1 और I4,
इनको तो प्लस में लेना है, लेकिन जो जा रही हैं इनको आपने माइनस में लेना है। तो जब आप ऐड करोगे देन दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये इसका जो है फर्स्ट लॉ है। उसके बाद इनकमिंग करंट आर पॉजिटिव एंड जो आपको बताया अभी मैंने, और ये इसका फॉर्मूला बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा दैट I1 प्लस I4 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 5। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो एज यूज। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकंड लॉ, इसमें बच्चे क्या है, इसमें आपका जो है लूप लॉ है, ठीक है, कि एक क्लोज लूप है हमारे पास। उसमें अगर हम EMF देख लें, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप देख लें, जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स आ रहे हैं उनको देख लें, उनको प्लस कर दें, देन दैट सम विल बी इक्वल टू 0। तो वो क्या होगा 0। सपोज करो यहाँ पे लूप हमने ABCA ले ली, ठीक है। अब आप देख रहे हो डायग्राम में ABCA, इसमें जो फर्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप है वो है E1, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक आपको बात बता दूँ मैं, यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन आपने लेने हैं, पहले वो समझ लो। पहला साइन कन्वेंशन है कि EMF is taken negative when we transfers from positive to negative terminal of the cell। तो जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इधर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तब क्या है EMF को हमने क्या लेना है नेगेटिव। और EMF कब पॉजिटिव लेना है, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद EMF is a potential fall along the direction of current in a current path. It rises along the direction opposite to the current path. Potential fall is taken negative, potential rise is taken positive। तो बच्चों पोटेंशियल फॉल कब होगा, पोटेंशियल फॉल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रही हैं तब तो आपने पोटेंशियल फॉल लेना है और उसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। और जब हम ऑपोजिट जा रही हैं उसके, फिर उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर तो करंट की डायरेक्शन में जा रही हैं तो नेगेटिव, अगर करंट के ऑपोजिट जा रही हैं तो पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पे हमने वैसे ही करना है। अब हम लूप ABCA देखेंगे। ABCA में जो E1 है, पहले E1 आएगा ना ये वाला, तो E1 हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसको हम क्या लेंगे नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा R1, ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल फॉल होगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल फॉल कितना होगा I1 इंटू R1, इसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, क्योंकि हम इधर को जा रहे हैं और जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर को है, सो ऑपोजिट है। जब ऑपोजिट होती है तो हम क्या लेते हैं इसको पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपने सभी जो है, इससे पहले आपने क्या करना है बच्चों, ये लूप बनाने से पहले आपने करंट देखने हैं, ठीक है। पहले आप करंट देखोगे, जैसे इसका करंट कैसे जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो इट विल फ्लो लाइक दिस, ओके। और नीचे वाले का ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले करंट देखनी है और करंट्स को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो हर एक ब्रांच में आपको बताना चाहिए कि हर एक ब्रांच में, पहले बता दूं आपको मैं, हर एक ब्रांच में जो करंट है वो सेम रहेगा, ठीक है। अगर आप ABC ये एक ही ब्रांच है ना, तो इसमें करंट सेम रहेगा, ADC इसमें सेम रहेगा, AC में इसमें सेम रहेगा, लेकिन वो क्या है कि तो स्टूडेंट्स यहाँ पे AC में करंट जो है वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लूप आपने लूप लॉ यहाँ पे लगाना है
और देखो ये सम जो आप कर लोगे ये सारा किसके इक्वल होगा, 0 के। इसी तरह से ACD इसमें देखोगे आप पोटेंशियल, ठीक है। आपने साइन कोटेंशियल का ध्यान रखना है और ये लॉ जो है लूप लॉ लगाना है।